أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ آواز نہیں جا رہی شاید؟ آ رہی آپ کو؟ جی ہاں بھائی، میری آواز آ رہی ہے کیا؟ ذرا بات بولیے۔ ہاں آ رہی ہے سر۔ جی سر، الحمد للہ۔ تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ کل ہم یہاں تک پڑھے تھے اعراب دیکھنا ہے ہم کو۔ یہ اسم کی اگر معلومات لینا ہے تو چار پیمانوں پر ہم کو اسم کو جانچنا پڑتا ہے۔ پہلا پیمانہ ہے کہ وہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے۔ دوسرا پیمانہ ہے اعراب کا۔ اعراب میں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے۔ اور فعل کی بات آئی تو اس میں پھر جزم بھی آ جائے۔ تو آج ہم پہلا پیمانہ اس کا سیکھنے لگے ہیں، جسے اعراب کہتے ہیں۔ اعراب کے معنی ہیں حرکت جو آخری حرف پر، کسی لفظ کے آخری حرف پر جو حرکتیں ہوتی ہے، جو تبدیل شدہ ہوتی ہے، اسے اعراب کہتے ہیں۔ آپ کے سامنے دکھ رہا ہے یہاں پہ کسی بھی اسم یا فعل کے آخری حرف پر جو حرکات ہوتی ہے اسے اعراب کہتے ہیں۔ مثلا رجل، اب رجل تینوں بھی شکلوں میں آ سکتا ہے، رجل، رجلن، رجلین۔ تو رجلن آیا تو معرفہ ہو جائے گا، مرفوع ہو جائے گا، اور رجلن آئے گا تو منصوب ہو جائے گا، رجلین آئے گا تو مجرور ہو جائے گا۔ دوسرا اسی طرح سے مسجد، مسجدن، مسجدن، جدار، جدارن، جدارن۔ اس طرح سے جو تبدیلیاں ہوتی ہیں اسے اعراب کہتے ہیں۔ اس کی اہم اگزامپل ہے، یہ نکرہ اسم ہے کیونکہ اس کے اوپر ال داخل نہیں ہوا، اس لیے ولدن، کوئی تو بھی ایک لڑکا مرفوع حالت، ولدن کوئی ایک لڑکا منصوب حالت، ولدن کوئی ایک لڑکا مجرور حالت۔ تو تنوین کے ذریعے ہم لوگ بتاتے ہیں کہ وہ غیر مخصوص اسم ہے، اس پہ دو آپ کو تنوین ملتے ہیں۔ تو اگر اسی کو ذرا اضافہ کر کے پڑھیں گے تو آپ کو چار حرکات کا علم ہونا ضروری ہے: رفع، نصب، جزم اور جر۔ یہ چار چیزوں میں فعل ہو یا اسم ہو، اس کے اندر آپ کو پہچاننے ملیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز، اگر آپ کے اسم کے آخری حرف پر ایک پیش یا دو پیش آ جائیں گے تو وہ آپ کو بتائے گا، نشاندہی کرے گا کہ یہ فاعل کا کام کرتا ہے، یہ فاعل ہے جملے کے اندر، اس کی جو حیثیت ہے وہ فاعل کی ہے یا سبجیکٹ کی۔ اگر آپ کے کوئی بھی لیٹر اپنا لفظ کے آخری حرف پر فتح نظر آ رہی ہے یا جر، آپ کو کیا بولتے ہیں آپ اس کو، ضبط نظر آ رہا ہے، تو وہ نصبی حالت میں ہے، اس پر کام ہوا، اس پر کام ہوا، جس کو ہم اردو میں مفعول کہتے ہیں۔ مفعول کہتے ہیں۔ بھائی میں آپ کے موبائل کو ذرا میوٹ کر لیجیے تاکہ آپ کو اچھی طرح سنی آئے۔ تیسری چیز ہے کسرہ، یعنی کہ جر۔ جر آنے کی دو وجوہات ہیں اہم۔ ایک وجہ ہے کہ ہر جر آئے گا اس کے بعد اسم آئے گا تو اس کے نیچے زیر دی جاتی ہے، اور دوسری وجہ ہے کہ اگر آپ کا مضاف مضاف الیہ کا مرکب بنتا ہے تو بھی آپ کو جر ملے گا اسم پر۔ سکون بتاتا ہے کہ جزم ہے، اس پر کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو مجزوم کہتے ہیں۔ تو تین حرکات ہوتے ہیں، یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں ایک ایگزامپل کہ تین حالت میں آپ کو کوئی اسم نظر آئے گا، تنوین اگر نظر آتے ہی آپ بولنا یہ اسم ہے،
اسم کی پہچان کے اندر सबसे बड़ी पहचान है कि उस पर तनवीन होती है। कल हमने देखे थे इसम के सामने मुअर्रफ बिल लाम यानी अलिफ लाम आए तो वो भी इसम होता है, और इसम के पीछे के आखिरी हर्फ पर जो हरकत होती है उसे हम एराब कहते हैं। ये तीनों लफ्जों पर अल नहीं है, इसलिए बैतुन, बैतन और बैतिन। बैतुन है तो रफा हालत में है, बैतन है तो नस्बी हालत में है, बैतिन है तो जर्री हालत। अब यहां पर दोनों भी हालतें लाया मैंने। नकीरा मारिफा, नकीरा रफा हालत में वलदुन, और दूसरा इसम है, ये है डेफिनेट, तो मारिफा है ये, और मरफू है अल वलदु। वलदुन का खास मखसूस होगा अल वलद। उसी तरह से मंसूब हालत में होगा वलदन, और मखसूस करेंगे खास करेंगे तो अल वलद। जर्री हालत में वलदिन, उसको खास बनाएंगे तो अल वलदी। तो तीन केसेस में आपको हैसियत समझ में आती है कि इस्म जुमले में कौन सी अदाकारी कर रहा है, ये जो भी लफ्ज है जुमले में किस हैसियत से आ रहा है, क्या वो फाइल है, क्या वो मफूल है, या कोई और एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये तीन चीजों से आपको इस्म पहचान जाएगा, रफा, नसब, जर, और ये तब्दील होते रहते हैं जैसा उनकी रोल, उनका जो है किरदार बदलेगा, उसी तरह से इनके ऊपर हरकतें बदली जाती हैं। तो एराब का मतलब है आखिरी लेटर पर होने वाली तब्दीलियां। तो चार चीजें याद रखना है आपको, रफा हालत है, नस्ब हालत है, जर हालत है, या जज्म है। इसे कहते हैं ग्रामेटिकल स्टेटस, इसे कहते हैं हैसियत। जुमले में किसी लफ्ज की क्या हैसियत, यानी नंबर प्लेट जैसी होती है, नेम प्लेट जैसी होती है। इससे आपको समझ में आता है कि ये रफा हालत में तो फाइल है, नस्ब हालत में है तो आप समझ जाना मफूल है, और जर्री हालत में है तो मजरूर है, और जज्म रहने की भी खास बात है। अच्छा, एक चीज खास नोट कीजिए, हर एक इस्म बाय डिफॉल्ट फितरतन रफा हालत में होता है, लेकिन उस पर कोई आमिल चीज आ जाए, उस पर अमल करने वाला कोई आ जाए, तो अमल करने वाले के वजह से उन्हें अपनी शक्ल बदल लेता है। ठीक है, अब धीरे धीरे डिटेल में जाएंगे हम। यहां पर हम देख रहे हैं एक टीचर दाखिल हुआ क्लासरूम में, तो टीचर जो करने वाला है वो रफा हालत में रहेगा। टीचर की दीगर मालूमात ये है कि कहाँ दाखिल हुआ भाई, क्लास में दाखिल, उसको कहते हैं मजीद मालूमात, डिटेल ऑफ द एक्ट। उसकी हरकत काय पे हो रही है, क्लासरूम पे हो रही, तो क्लासरूम नसब में आएगा, और टीचर जो है रफा हालत में आएगा। इसी तरह से यहाँ पे तीन एग्जाम्पल दिया है मैंने। जैद ने मदद किया हामिद की, करने वाला पेश वाला आएगा यानी मरफू हालत में आएगा, जिस पर काम हुआ वो नसब हालत में आएगा। उसके नीचे के नीचे एक टीचर दाखिल हुआ क्लासरूम में, तो टीचर रफा हालत में, क्लासरूम नसब में। उसके बाद की एग्जाम्पल देखिए, जैद ने पढ़ा किताब से, किताब और से का जिक्र आ रहा है तो वो हर जर है। हर जर क्या करेगा, देखिए किताब से पढ़ा तो किताब को जरी हालत में डाल दिया, किताबी किताबिन हो जाएगा या अल किताबी। ये बात और डिटेल जाएंगे हम धीरे धीरे। तो ये तीन चीजें इस्म के लिए बहुत निहायत ही जरूरी है समझना। इस्म है तो क्या वो रफा हालत में है यानी करने वाला है, क्या वो नसब है या काम उस पर हो रहा है, और तीसरा जर है, क्या उसके पहले, इस्म के पहले हर जर आ रहा है क्या, या फिर मुदाफ आ रहा है क्या उसके। ये चीजें नोट करिए। अब ये एग्जाम्पल आ रहे हैं, आप अच्छी तरह से समझते हैं, जरा देखिए। मुअर्रबुन का मतलब हरकत वाले इस्म, मुअर्रब का मतलब जो मुतहर्रिक हो उसको मुअर्रब कहते हैं, वो तीनों हालतों में तब्दील होते हैं इसलिए उसको मुअर्रब कहते हैं, रफा, नसब, जर। अब पहली एग्जाम्पल आप में से कोई पढ़िए भाई। यहां पर मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं
कि तब्दीली आने की वजह क्या है और तब्दीली नहीं आने की वजह। पहला जुमला पढ़िए, पहले तीनों जुमलों के सामने एक मैंने लिखा आमिल। आमिल के मतलब होते हैं अमल करने वाला। अमल करने का मतलब है वो एराबी शक्ल तब्दील कर देता है, उसका अमल होता है। जैसा मजाक से हम बोलते हैं कोई जादूगर है, जादूगर ने कुछ अमल कर दिया तो वो बच्चा बन गया बकरी, तो अमल से तब्दील हो जाता है। तो पहला जुमला पढ़ेंगे हम, जा मुदर्रिसो, जा अल मुदर्रिस। तो यहां पर आपने देखेंगे कि काम करने वाला कौन है, मुदर्रिस है, इसलिए ब्लू में उसको लिखा है मैंने, उसके ऊपर पेश है। तो ये देखते ही हैसियत समझ में आती है हमको जुमले में। मुदर्रिस की क्या हैसियत है भाई, फाइल है, तो बोलेंगे मुदर्रिस आया। ठीक है, तो यहां पर मुदर्रिस खुद काम करने वाला है, इसलिए उन्हें बेस फॉर्म में है। बेस फॉर्म का मतलब उसमें कोई तब्दीली है कि तो उसका कोई ने काम नहीं किया, मुदर्रिस ने उल्टा काम किया। ठीक है, तो वहां पे सामने देखिए लिखा है मुदर्रिस मरफू हालत में। जुमला नंबर 2 देखिए, साल तो मुदर्रिसा। अब जरा मुझे कोई बताएंगे यहाँ ये जुमला क्या है, ये तो हम मुकम्मल पढ़ चुके हैं, आपको सब आएगा। फेलिया है सर। हाँ, जुमले फेल लिया है, तो इसके अंदर फाइल कौन है, मैंने पूछा फाइल चाल ये तो मैं देखो, तू है सर, तू कोई आना भी आना तू कोई भी मैंने पूछा है कोई ना, भी आना जुमला है, आना कोई है। भी जुमला है तो आपका काम है, काम हुआ तो करने वाला मिलेगा, जिस हाँ पर जी सर, काम किया गया वो भी मिल सकता है। मैंने पूछा साला का मुदत। जो है, हाँ जरा सुनिए अपने पास, इसका माता है साला, उसने पूछा। अब इसको अगर आप देखेंगे तो लाम कलिमे पर यहाँ पे जज्म है और उसके बाद तू है, तू बोले तो मैंने पूछा। मैंने किससे पूछा, मुदर्रिस को पूछा। तो काम किस पे हुआ, मुदर्रिस पे काम हुआ। मुदर्रिस पे काम हुआ, इसलिए देखिए हरे रंग में उसके ऊपर जबर दिया है। मफूल बन गया। इनको आ रहा क्या, आवाज आ रही ना मेरी थी। जी सर। हाँ, तो मुदर्रिसा क्यों बना भाई ये, अल मुदर्रिसा इसलिए बना कि अलिफ लाम लगा हुआ है, दो तनवीर नहीं एक थी, तो ये मुदर्रिसु से जाके मुदर्रिसा बना। तो क्या फायदा है भाई एराब का, एराब का ये फायदा है कि हम एराब की वजह से इस्म का क्या हैसियत है ये जानेंगे। इस जुमले में मुदर्रिसा पर काम हुआ, ऑब्जेक्ट है वो, और करने वाला अना है। ठीक है, अना का मतलब मुतकल्लिम वाहिद काम कर रहा है यहाँ। मैंने पूछा, किससे पूछा, मुदर्रिस से, इसलिए मुदर्रिस साहब मंसूब हालत में चले गए। आपको जब भी कोई जुमला नजर आएगा तो दो चीज याद रखना है, मैंने पूछा, ने लगाना तो करने वाला बनता है, को लगाएंगे तो जिस पर काम हुआ। मैंने पूछा मुदर्रिस को आया इसलिए जबर आ गया और उसको नस्बी हालत कहते हैं। तीसरे जुमले की तरफ आप जरा जहन लगाइए, फिर लिखे हमने सालतू। सालतू में फिर से फेल व फाइल है, मैंने पूछा। अब सल्लम तो है, सल्लम तो में देखिए फिर से तू दिख रहा है, और मैंने सलामती भेजा। जरा रुकिए, अब यहां पर अला आ गया, अला हर्फ जर है, और हर्फ जर एक आमिल हर्फ है, और हर जर के बाद जो इस्म आता है वो जो मजरूर हो जाता है। तो यहाँ पर मजरूर होने की वजह सबब क्या है, हर जर है, इसलिए इसे कहेंगे मजरूर है, इस्म मजरूर है। आप आखिरी दम तक जब तक का पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, ये जो चार्ट है सबसे अहम है, आपको ये समझ में आना चाहिए अमल करने वाला क्या है। अमल करने वाले के वजह से एरबी हालत तब्दील होती है। पहले जुमले में इस्म पर कोई अमल नहीं हुआ, उन्हें खुद ही करने वाला है,
दूसरे जुमले में मुदर्रिस पर अमल हुआ इसलिए उन्हें नस्बी हालत में आ गए। तीसरे जुमले में अला ने काम करा, उस पर अमल करा तो मुदर्रिस। बात समझ में आई क्या? यहाँ कोई सवाल है तो पूछिए। ये तीनों वजूहात है जुमले में इस्म की हैसियत पहचानने का। एक सबसे बड़ा आला है ये। इस तरह का काम सिर्फ अरबी जुबान में मिलेगा। तो फिर लौटाए हम, रफा हालत में आपको दो निशानियां मिलेंगी। अगर वो नकीरा इस्म है तो पेश मिलेगा आखिरी हर्फ पर, और मारिफा है तो पेश मिलेगा, नकीरा है तो पेश तनवीन मिलेगी। नसब में भी दो चीजें होंगी। अगर नकीरा है तो एक जबर मिलेगा। ठीक है, सर मतलब रिपीट करिए। रफा क्या? रफा करने वाला। अब करने वाला ये मारे अब पास यहाँ पेश है। हाँ, जी। मारिफा में देखिए यहाँ पे जा अल मुदर्रिसो है, तो ये मारिफा अल की वजह से मारिफा है तो उसके ऊपर एक पेश है। मैंने आपको परसों बताया, कल बताया ना पूरा मारिफा और नकीरा कैसे बनते हैं। जी किताबुल को अगर अल लगाए तो अल किताबु होता है। तो यहाँ पर जो इस्म है वो मारिफा है, उसलिए एक पेश है उस पे। अगर अल नहीं होता तो मुदर्रिसुन हो जाता, तो रफा हालत में मुदर्रिसुन हो गया। अगर वो मारिफा है जैसा अल लगा हुआ है तो मुदर्रिसु होगा। ठीक है। अब नसब में देखिए यहाँ पे नंबर 2 जुमला देखिए, अल नहीं होता तो मुदर्रिसन होता था, अल रहने से मुदर्रिसा बना, वो हो गया नसब हालत। और आखिरी जुमले में देखिए अला अलल मुदर्रिसी, अगर अल ना होता तो मुदर्रिसिन होता था, अल की वजह से मुदर्रिसी। हाँ, तो देखिए गौर कीजिए, यहाँ पे डिटेल बढ़ा रहा हूं मैं अभी। नसरा, नसरा का मतलब है उसने मदद किया। अब आपका फर्ज बनता है 3 जबर वाला कोई भी फियल आया तो वो पहला या चौथा अगर सेगा है तो कभी ऐसा होता है कि वो मुस्ततिर होता है, छुपा हुआ होता है, हुआ या हिया। लेकिन अगर इस्म जाहिर होता है, क्या बाजू में देखेंगे आप, जैदुन के ऊपर 2 पेश नजर आ रहे हैं, तो आप बोलेंगे इसका फाइल जाहिर इस्म है, तो जैद ने हरकत किया। जैद ने क्या हरकत किया? मदद किया। मदद पाने वाला कौन है? आमिर। तो कैसा समझेंगे? नहीं बोलेंगे तो 2 पेश आ गया, को बोले तो जबर आ गए। रफा हालत में 2 पेश दिख रहे हैं, नसब हालत में 2 जबर दिख रहे हैं। तो पढ़ेंगे कैसा हम उर्दू में? इससे हैसियत, करने वाले की हैसियत, जैदुन, इसको बोलेंगे पेश वाला है। ठीक है। और हामिदन, ये मदद पाने वाला। अब जरा देखिए 2 जुमलों को कंपेयर कीजिए। पहले वाला जुमला पढ़िए जोर से। नसरा जैदुन हामिदन। नसरा जैदुन हामिदन। जैद ने नीचे का मदद की जुमला हामिद पढ़िए, की। नीचे का जुमला पढ़िए। नसरा नसरा हामिदुन हामिदुन जैदन। जैद। तो पहले जुमले में जरा देखिए पेश वाला कौन है? जैदुन है। सईद है। करने वाला जईद है। जईद ने मदद किया, किसकी? हामिद की। हामिद की। हामिद ने मदद पाया, इसलिए हामिद। दूसरे जुमले में हामिद मदद कर रहा है भाई, हामिद ने मदद किया जईद की, तो जईद ने 2 जबर ले लिया और हामिद ने 2 पेश ले लिया। तो ये मालूम हुआ हमें कि जुमले में किसी भी इस्म की हैसियत समझने के लिए एराब की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। एराब ही हमको गाइड करता है कौन क्या किरदार निभा रहा है। तो यहाँ पे देखिए जरा आप जर के बारे में देखेंगे, अल वलदु फिल बैती, अल वलदु फिल बैती, लड़का है घर में। पी जो है ये प्रीपोजिशन है, उसको हर जर कहते हैं, वो खींचता है और इस्म के एराब को गिरा देता है। देखिए तस्वीर में आपको नजर आ रहा होगा, वो रस्सी खींच रही है जोर से,
तो अल बैतु था, अल बैती हो गया, टी के वजह से। तो इस्म के सामने जब भी हर्फ आएगा, इस्म हमेशा मजरूर हो जाएगा। अल बैतो फिल बैती, अल मस्जिदो फिल मस्जिद, अल गुरफतो फिल गुरफती, अल हम्मामो फिल हम्मामी, अल फसलो फिल फसल। तो ये तीसरी चीज है जर। जर होने के दो वजूहात होंगे, हमेशा याद रखेंगे। पहली वजह है हर जर आएगा तो उसके बाजू में इस्म ही होगा। हर जर के बाद हर हमेशा इस्म ही होगा और इस्म मजरूर हालत में होगा, खींचा जाएगा। और दूसरा होगा, आगे पढ़ेंगे हम, कि मुदाफ मुदाफिले का रिश्ता भी बनेगा, तो मुदाफिले भी जर में जाएगा। चलिए आगे आगे हम। तो प्रीपोजिशन के बाद जब भी इस्म आएगा तो वो नीचे खींचा जाएगा। अब देखिए, अक़रऊ मिनल किताबी, मतलब है मिन आ गया। मिन क्या है? हर जर है, से पढ़ा। हाँ, मैं पढ़ा किताब से। अब यहाँ हर जर के मुतालिक और भी थोड़ी मालूमात ले लीजिए। तो पहला, नहीं आप बड़बड़ मत कीजिए, सुनिए और मैं पूछूंगा जब बताइए बस। अब आप जुमला पढ़िए और उसके मायने बताइए। ज़हबा ज़ैदुन इला सूक़ी। अब यहाँ पर मुझे बताइए, आप में से कोई एक ने करने वाली जात कौन है? पेश वाले को ढूंढो भाई। ज़ैदुन ज़ैदुन ये एक्टर है, करने वाला। काम क्या है भाई? ज़हबा, जाना जाना, मार्केट में कुछ भी नहीं है। ज़ैद गया, पहले बोलो ज़ैद करने वाला फाइल, काम क्या है? गया। किस तरफ गया? इला सूक़, मार्केट के तरफ गया। इला हर जर है, अल सूक़, अल सूक़ा सूखी था, तो ये नीचे जर में आ गया। दूसरा जुमला मैं पढ़ता हूँ, आप समझाइए। अल वलदु फिल बैती, लड़का है घर में। अब लड़का के बारे में बात करें, जिसके मुतालिक बात बताते हैं उसको सब्जेक्ट कहते हैं, उसे फाइल कहते हैं। तो सब्जेक्ट रहने की वजह से उस पर पेश आना जरूरी है, और ये मारिफा है, डेफिनेट है। द बॉय इज इन द हाउस, लड़का है घर में। फी आने से क्या हो गया? इस्म मजरूर हो गया। अब नीचे पढ़िए, अल मकतबु। अल मकतबु का मतलब क्या है भाई? अलल मकतबी, टेबल। अलल टेबल, मकतब, कुछ चीज है टेबल पर। तो पूरा जुमला बनाएंगे, अल किताबु अलल मकतबी, किताब है मेज पर। टेब, अब दूसरा लफ्ज है, इसमें है अल फसलु, मारिफा है, अल है, इसलिए एक पेश है इस पे। इसके सामने फी दाखिल कीजिए। फिल फसली का मतलब है क्लासरूम में। ठीक है भाई। अब इसी तरह से ये खुलासा ये हुआ कि अगला जुमला जो भी जिसके सामने का की के आया, क्या आएगा? का की के। अंग्रेजी में का की के को ऑफ कहते हैं। तो जुमला है अंग्रेजी में द बुक ऑफ अल्लाह। तो अब हम बनाएंगे इसको किताबुल्लाही, किताबुल्लाही। तो यहाँ पे किसकी बात चल रही है? किताब की बात चल रही है। किताब, तो किताब हो गया मुदाफ, अल्लाह लफ्ज जलाला है, मुदाफ इलैहि है, वो जर लेगा। मैसेंजर ऑफ अल्लाह, रसूलुल्लाही, रसूल हो गए मुदाफ, और अल्लाह सुब्हाना ताला का नाम हो गया अल्लाही। अल्लाह के रसूल। अब यहाँ पे जरा और भी जरा गौर फरमाइए, एक एक चीज आपको वाज़ेह होते जाएगी। देखो इस आयत मुबारका में क्या क्या लिखा हुआ है, देखो।
सुर्ख रंग से जो लिखा हुआ है वो क्या है, आप पहचानिए। अब यहाँ पर आपको धीरे धीरे बढ़ेगा आपका इल्म। इन्ना फी ज़ालिकल, ठीक है, आयातिन, तो ज़ालिका और किताब, आयत, ज़ालिका आयत, ये दोनों भी मरफू है और मारिफा है, डेफिनेट है, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं हम, उसकी वसअत देख रहे। पहले हमने देखे वसअत का मतलब डेफिनेट है कि इनडेफिनेट है। वसअत के खाने में गौर कीजिए, इसमें इशारा ये हमेशा मारिफा होता है, डेफिनेट होता है। उसके बाद में क्या हो गया, आयाती, अल आयत का मतलब नकीरा है, तिल दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे नकीरा इसमें है क्योंकि दो उस पे हरकत नजर आ रहे हैं। अब सब्बारिन, सब्बारिन देखिए दो जेर नजर आ रहे हैं, तो नकीरा है। हाँ, शकूरिन, फिर दो जेर नजर आ रहे हैं, तो जिसके ऊपर भी तनवीन नजर आएगी आप आंख मूंद कर बोल देना कि ये जो है इसमें है। दो दो अगर तनवीनें दिखेंगे तो बोल देना नकीरा है। अच्छा, अदद के हिसाब से देखिए, पहले वाला जो है वाहिद है, उसके बाद में आयातिन जमा है, उसके बाद सब्बारिन वाहिद है, और शकूरिन भी वाहिद है। ये धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। अब देखिए, ज़ालिका मुज़क्कर है, आयातिन मुअन्नस से तामे खत्म हो रहा है। अच्छा, सब्बारिन ये भी मुज़क्कर है और शकूरिन मुज़क्कर है। अभी परेशान मत होना, इसको बहुत डिटेल में, इसकी जरा तशरीह कर लीजिए भाई। यक्तुबु हामिदुन रिसालतन अलल मक्तबी, एक एक चीज को आराम से देखिए। सबसे पहला लफ्ज क्या है, यक्तुबु, ये इसम है, फेल है या हर्फ है? फेल है, पहले से कौन पहले सा मुजारे, फेल है? पहले मुजारे, पहले मुजारे सर। वाहिद, पहले मुजारिफ का वाहिद सीगा कौन सा? वाहिद मुज़क्कर गायब का गायब। सीगा, वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा। गायब मुज़क्कर, माशाअल्लाह। तो ये काम है, लिख रहा है, क्या होगा मतलब, लिख रहा है या लिखता है, तो हम करेंगे लिख रहा है। अब काम दिख गया, करने वाले को ढूंढिए भाई। आगे कोई इसम दिख रहा पुलिस वाला तो हामिद साहब दिख रहे हैं, तो ये इसमें अलम है, क्योंकि हामिद उसका नाम नहीं था, वलदुन था, वो उसको झूले में डाल के नाम रखे, उसका नाम हो गया इसमें अलम, प्रॉपर नाम, ठीक है। तो हामिदुन की एराबी हालत क्या है, रफा हालत में है, जो है रफा हालत में, करने वाला हामिद है, हामिद है लिख रहा, हामिद है लिख रहा। अब उसके बाद का इसम है या फेल है या हर्फ है, बताइए भाई। रिसालतन, इसमें है सर, ये तो माशाअल्लाह। अच्छा, ये मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? मुअन्नस है, मुअन्नस है। बोलता ये बता रही कि बोलता। मुअन्नस है। एराबी हालत क्या है? रफा, हाँ, नस्बी है, क्योंकि उस पर काम हुआ है। डिटेल ऑफ द एक्ट बोलते हैं इसको। डिटेल का मतलब मजीद मालूमात फेल की। हामिद है लिख रहा, तो सवाल करो क्या लिख रहा है, किसे लिख रहा है? लिख रहा है, एक खत लिख रहा है, और उस पर जब काम होता है तो उन्हें बन जाता है नस्बी। तो इसम के बारे में बोलिए, इसम है नकीरा, वाहिद है और नकीरा हालत। अब उसके बाद आ रहा है हर जर। हर जर आते ही आपका एंटीना खड़े हो जाना चाहिए और आपने बोलना चाहिए इसके बाद तो इसमें ही आएगा। जर्री हालत में। तो इसमें आएगा तो जर्री हालत में आएगा। अला है हर जर और इसम है मजरूर। मजरूर इसलिए हुआ कि अला जो है आमिल हर्फ है, उसने अमल करके मकतब को जेर दे दिया। अच्छा, इसमें और कौन आमिल हर्फ है, जरा देखिए बना। ये तो आमिल, अला एक आमिल हो गया, और क्या आमिल है?
फेल आमिल है, फेल आमिल है, हामिद नहीं करता। हामिद के लिखने से हामिद लिख रहा है। यहाँ पर जो ऐराबी तब्दील ला रहा है, लिख रहा है, तो हामिद को सवाल नहीं करेंगे हम, फेल को सवाल करेंगे। क्या लिख रहा है? तो उन्हें बोलेगा रिसाला लिख रहा हूं भाई। तो रिसाले पर अमल करने वाला फेल है। फेल के अमल से रिसाला नसब गया है। और ये फेल कौन सा है? लाजिम है कि मुतअद्दी है? लाजिम है। अरे लाजिम को तो मफूल आता सॉरी ही सॉरी नहीं सर, ना। मुतादी सर, हाँ सर, मतलब नहीं समझा, मुतादी है सर, इसीलिए उसमें मैं ये मफूल आता रिपीट कर रहा हूँ कि बहुत दिन हो गए, सो गए आप। नहीं सर, वो उर्दू के हर्फ है ना, अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बिल्कुल कोई बात नहीं है। चलो अब यहाँ पे आ जाइए। अब अगर हमें इस्म की पहचान करना है तो इस्म की पहचान में हमको रफा नसब जर समझना है। वाहिद मुसलमान है और गैर मखसूस है। उर्दू में बोलेंगे हम गैर मखसूस, इंग्लिश में बोलेंगे इनडेफिनेट, अरबी में बोलेंगे नकीरा। कीरा। मुस्लिमुन, मुस्लिमुन का मतलब कोई एक मुसलमान मर्द। अब दूसरे में आ गया मुस्लिमन। मुस्लिमन जरा पढ़िए। मुस्लिम नसब में है, बोलिए कौन सी हालत में है? नसब में मनफी हालत, मनफी हाँ, तो हालत। उस पर किसी चीज ने अमल किया, कोई फेल ने अमल किया, इसलिए उन्हें नसब में गया। उसका बेसिक फाउंडेशन क्या रहता है? मुन रहता है। पैदाइशी फितरत क्या है उसकी? मुन। उस रफा पर किसी ने काम नहीं करेगा तो मुस्लिम मुन रहेगा। उंगलियां देखिए, उंगलियां सीधा खड़ा है, उंगली सीधी खड़े करके रखी हमने, उसको रफा हालत में, बुलंद हालत में। उस पर मार पड़ी तो उन्हें बन गया मुस्लिमन, झुक गया। और नीचे देखिए मुस्लिमिन, कोई हर जर आके उसको टकराया तो मुस्लिमिन हो गया। ये तीन डायरेक्शन याद रखिए। बच्चों को पढ़ाते टाइम पे इस तरह से हाथ से बताइए या उंगली से बताइए। डंडे के जैसा सीधा खड़ा है तो मुस्लिमन, क्रॉस हो गया तो मुस्लिमन, जमीन पे गिर गया तो मुस्लिमन। ये तीन डायरेक्शंस याद कीजिए, लोगों को आसान तरीन जबान में बताना। अब दो मुसलमानों का किस्सा चालू हुआ। दोनों मुसलमान हालत रफा में है, इसलिए मुस्लिमूना, मोर देन टू है। दो से ज्यादा रहे तो क्या बन जाएंगे? जमा। ये जमा हालत में मुस्लिमूना बनेगा, यानी बहुत सारे मुसलमान रफा हालत में है, बेसिक हालत में है, डिफॉल्ट हालत में। अब उस पर किसी ने अमल करा, मारे तोड़े उनको, तो क्या बन गया? हो मुस्लिमीना। और हर जर ने भी टक्कर मारा तो भी मुश्तरक है, ये मुस्लिमीना ही होगा, कॉमन रहते। मुस्लिमीना नस्बी और जर्री हालत सेम रहती है। तो ये है रफा नसब जर की हालत एक्शन की वजह से। और आगे चलेंगे भाई। अब यहाँ पे औरतों की जमात आ गई है। एक औरत खातून है, रफा हालत में है, उन पर कोई अमल नहीं हुआ तो खाला बन गए मुस्लिमतुन। एक औरत रफा हालत में, नकीरा रफा हालत में। दो औरतें नकीरा नस्बी हालत में, मुस्लिमतन। मुस्लिमतुन से तन हो गया क्योंकि उन पर अमल हुआ है, कोई ना कोई ने अमल किया। अब तीसरे में हर जर ने अमल किया या मुदाफ ने अमल किया तो क्या बनेगा भाई? मुस्लिमतिन। तो ये तीन हालतों में आपको एक्शन देखिए, एक्शन जहन में पक्का बिठा लीजिए। मुस्लिमतुन लिखा तो एक खातून रफा हालत, हॉरिजॉन्टल देखेगा तो एक खातून नसब हालत, सजदे में देखा तो एक खातून जर्री हालत। इसी तरह से जब अगर हम दो से ज्यादा मुसलमानियां लेंगे तो बनेगा मुस्लिमातुन। मातुन, आतुन याद रखिए, यहाँ पे ऊना याद रखिए, यहाँ पे आतुन याद रखिए।
तमाम मुसलमान औरतें रफा हालत में है, उन पर किसी ने अमल नहीं किया, नेक है, पाक है, उन पर अमल कोई नहीं करेगा। मुस्लिमातिन, हाँ ये उत्तर था, ये भी किसी ने तड़ दिया उसको। मुस्लिमातिन, नीचे आइए, हर जर ने लुढ़का दिया हो, मुस्लिमातिन। तो ये पिक्चर्स याद रखिए। मुस्लिम चार्ट इंतहाई अहम है इस्म को पहचानने के लिए। अब एक और बहुत अहम बात है, ये भी लिख के रख लीजिए, इस पर ज्यादा जोर नहीं दिए थे हमने। अबू, अबू किसे कहेंगे? अब्बा को कहेंगे, ठीक है, अबू, ठीक है। अबू का हालत है रफा हालत में, अब्बा साहब जो एकदम बेसिक हालत में, लेकिन किसी ने तड़ी दिया तो अबा, और हर जन ने टक्कर मारा तो अभी। अब जरा दूसरे पे देखिए क्या लिखा है भाई, गैर मुनसरिफ अस्मा। ये क्या होता है? ये ऐसा होता है कि कोई इस्म दो हालतों में ही तब्दील होता है। अब दरअसल होना चाहिए था इब्राहिमुन, इब्राहिमन, इब्राहिमिन, तो ये ऐसा नहीं होता है। कुछ खास इस्म के जो कुरान नाजिल होने के पहले के ही, तो इनके दो ही शक्लें होती, इब्राहिमू, इब्राहिमा, तीसरा भी इब्राहिम। तो पहले वाले को बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई? इसको मैंने बताया था भाई, मुअर्रब बोलिए। मुअर्रब का मतलब क्या है? तीनों हालतों में तब्दील होते हैं, उसको मुअर्रब कहते हैं। दो ही हालतों में तब्दील होते हैं तो गैर मुनसरिफ। पहले वाले को मुनसरिफ बोलेंगे, दूसरे वाले को गैर मुनसरिफ, ठीक है। आप देखो थर्ड फॉर्म में देखिए, इसको मबनी कहते हैं। मबनी मतलब फिक्स रहता है, ये कभी तब्दील नहीं होता। हाजा, 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 तो ये कोई तब्दील नहीं हो रहे। रफा हालत भी हाजा, नसब हालत भी हाजा, जर हालत भी हाजा। इसी तरह से कुछ ऐसे इस्म है कुरान में, जैसा मूसा, 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 ईसा, ईसा, ईसा। तो इनके एराब दरअसल क्या है, छुपे हुए होते हैं। हमको हमको तय्युन करना पड़ता है उसका। दिल में समझ लेना कि ये रफा है, दूसरे को दिल में समझ लेना कि ये नसब है, तीसरे को दिल में समझ लेना कि ये जर है। ये बड़ी अहम बात है। इसको बोलते प्राइमरी एराब और सेकेंडरी एराब। प्राइमरी एराब में तीनों के तीनों शक्लें नजर आती है। सेकेंडरी में आपको दो ही एराबी हालत मिलते हैं, ऊ और आ। टर्शरी तीसरी हालत में मबनी होते हैं भाई, कोई बदलते ही नहीं। तो यहाँ पे फिर से मैं वही बात कह रहा हूं, जरा जोर से पढ़िए और मुझे बताइए क्या है। अखू का मतलब है भाई, अखू हामिदिन, ये मुदाफ मुदाफ इलैहि का रिश्ता है। इसमें मुदाफ है अखू, अखू का मतलब है भाई, और हामिदिन का मतलब तो हामिद है, इसमें अलम है। तो हामिद जर्री हालत में आने की वजह मुदाफ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जुमला क्या बन रहा है, जरा गौर से देख के बताइए मुझे। जा अखू हामिदिन, इसमें फाइल कौन है? आया अखू हामिद, भाई फाइल, फाइल बोले, गया ना गया? हामिद है, हामिद है सर। नहीं है हामिद। नहीं, हामिद हामिद का हामिद का भाई है। हामिद का भाई हामिद आया। तो अच्छा, भाई मालिक आया, है, जिसमें तो हामिद का है। भाई। ये समझना बहुत जरूरी है। तो भाई इसके आया। अंदर अरबी तब्दील जो है हामिदिन पे हुई, क्योंकि ये मुदाफ इलैहि है। आया भाई, किसका भाई? हामिद का भाई। भाई आया। हो रही क्या फिनिशिंग? हो रही क्या? तो अच्छा दिख रहा क्या? समझ रहा कुछ एक्स्ट्रा? जी सर। अब दूसरा जुमला पढ़िए, राई तो भाई अखा हामिदिन। ये क्या है भाई? बोलो। राइतु का मतलब क्या है? देखा मैंने। क्या? मैंने कौन देखा? मैंने देखा। हामिद
क्योंकि ये फेल व फाइल है, माजी का सीगा है, और वाहिद अपना मुतकल्लिम वाहिद का सीगा है। मुतकल्लिम वाहिद का अब सीगा। किस पर काम हो बताइए मुझे, इसमें मफूल कौन है भाई? मफूल हामिद का हामिद भाई नहीं, आखा। आसा हामिदिन। आखा हामिद का गलत भाई सर। गलत गलत। भाई है इसके अंदर, मुदाफ जो है यहाँ पर है मफूल। हामिद तो रिश्ते की वजह से हामिदिन हुआ। तो हामिद किसको का देखे भाई अपने? हामिद देखे क्या? किसको देखे? पूछो पूछो, तू किसको आका देखा रे? बोलो आका भाई को देखना। भाई किसका? हामिदिन। इसलिए आपको का क्या बन गया? हाँ, नस्बी हालत आपको बता रही है, मैथमेटिक्स सही है, अरबी का ग्रामर मैथ्स है। आंखों से क्या बन गया? आखा। आखा बनने की क्या वजह है? भाई फेल ने उस पर अमल करा। किसको देखे हमने? भाई को। किसके भाई को? हामिद के भाई को। उसका कुछ भी नाम होगा, खालिद नाम है उसका। जरा संभाल के रखिए ये पूरे के पूरे स्लाइड, क्योंकि मालूम है कोई भी आपसे खड़े खड़े पूछ सकता है, बहुत अरबी पढ़ी बेटे तू, जरा देखो बता बोले इस पे क्या है, बोले तो परेशान हो जाता। सल्लम तो यानी सलामती भेजा। किसने भेजा? मैंने। फेल व फाइल है। हाँ, अब जरा बोलो, अला क्या है? हर्फ जर है। जर। पर भेजा। किस पर भेजा? हामिद पे भेजा कि भाई पे भेजा? भाई पे। हाँ, और भाई भाई से पहले क्या रहा? पहले अगर अला नहीं होता था तो अखा रहता था वो, लेकिन वहां पे हर चराने से अकी हो गया। अब दो लोगों ने अमल करे, पहले देखा, मैंने देखा तो अखा हो जाता था, ऊपर हुआ ना अखा। हाँ, नीचे क्यों अखी हो गया भाई? बीच में और एक आमिल आ गया, दो आमिलों ने अमल करे भाई इस पे, बड़ा बेचारा, तो क्या बोलेंगे, जुल्म हुआ, मजलूम है, उन्हें दो लोगों ने एक्ट करे उस पर। आप बात समझ में आई? जी तो सर। यहाँ पूछेंगे आप अमल किस पे हुआ? तो भाई पर हुआ, डबल भाई। अमल हुआ। देखने वाले ने अमल करा, फिर अल्लाह ने फिर अमल कर दिया। मैंने भेजा सलाम, किस पर भेजा? भाई पर। किसके भाई पर? हामिद के। क्या नाम है उसका? खालिद नाम है। तो देखिए, रफा बोले तो सीधा खड़ा है, नसब बोले तो थप्पड़ खा के झुक गया, जर बोले तो हौदा हो गया। ये डायरेक्शंस याद रखो बच्चों। चलो यहाँ पढ़ के बताओ मेरे को। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हाँ, ये लाम कौन सा है? लाम अलीफ जबर ला, ये कौन सा लाम है? जरा मुझे बताएंगे कि तो हमारा पूरा पढ़ाई हो गई है। जरा ऑनलाइन वाले बताए भाई मुझे, ये ला कौन सा ला है? सर लाए नफी है ना? लाए नफी है सर। लाए नफी जिन्स, बोलिए। लाए लाए नफी नफी। जिन्स। इन्हें सर सगट पूरे को, हर चीज को जीरो कर देता। दुनिया में इससे बड़ा नेगेटिव कोई भी नहीं। नहीं है कोई इलाह इल्ला, क्या है इसको क्या बोलेंगे? सिवाय वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह। सिवाय। क्या है सर? नहीं है कोई भी इबादत के काबिल अल्लाह के अलावा। इल्ला। बस ना कहते हैं। हाँ, क्या पूछ रहे? पूछो बेटे, एक बार में पूछ लो। इल्ला किसमें आता सर? इल्ला आता है एक्सेप्शन में। आपको इंग्लिश आती है? जी सर। तो अगर आपके घर में आप एक बेटी है, बाकी चार भाई है, तो क्या बोलेंगे? मेरे अलावा लड़की कोई भी नहीं है। जी सिवाय। अल्लाह के अलावा कोई भी इबादत जी करने के माबूद नहीं है कोई भी। अगला जुमला देखिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह। रसूल अल्लाह तो के यहाँ पर किसकी बात चल रही है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है अल्लाह के रसूल। तो यहाँ पे जो फाइल है, नाम मोहम्मदुन फाइल है, इसलिए रफा हालत में है। ठीक है, आगे मुजाफ मुजाफ दूसरी नहीं हालत ना। में रफा हालत में है कि तो उस पर कोई अमल नहीं हुआ। अगला, अगले नीचे की आयत का टुकड़ा पढ़िए।
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हाँ, अब जरा ये कौन सा फेल है, फाइल है, मफूल है, इस्म है, क्या है बताइए। अशहदु पहले मुजारे है सर, यशहदु अमर है सर, यशहदु मुतकल्लिम का सिगा है, मुतकल्लिम का वाहिद सिगा है सर। मैं मैं शहादत मैं देता गवाही हूँ। देता हूँ, शहादत देता हूँ। अन क्या है की हर के पे अत- ये हर्फ है, क्या है, कौन सा हर्फ है ये, नस्बी है कि जज्मी है? नस्बी है सर, नस्बी नस्बी नस्बी। ला इलाहा नहीं है कोई भी इलाह अल्लाह के अलावा। तो यहाँ पे कोई काम है क्या भाई? काम दिख रहा है क्या आपको? देखो काम है, यहाँ पे काम है, शहादत देने वाला है। कौन है? मैं। मैं फाइल कौन है? मैं हूँ। मैं और अना आगे देखिए, पढ़िए, वह अशहदु अन्ना मोहम्मदन। अब देखो अन्ना आने के बाद क्या हो गया? मोहम्मदुन से क्या हो गया? मोहम्मदन हो गया। जी क्योंकि नस्बी है वो, तो इस्म बन गया मंसूब। ठीक है, चलिए नीचे देखिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन। तो अल्लाहुम्मा अल्लाह सलामती भेज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अला हर्जर आया, इसलिए इस मोहम्मदिन हो गया। तो तीन हम शक्लों में आपको ये इस्म आपको कुरान में नजर आएगा, मोहम्मदुन, मोहम्मदन, मोहम्मदिन। ये आप याद करके रखो, किसी को पढ़ाने के लिए आसान है ये कलमे शहादा याद करना और झट बोल के बोल देना, अजान को सुनने का बोल देने का, और अल्लाह एक है बताने के लिए बोल देना। तो इसमें तीन शक्लों में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मिलेगा। पहले में मरफू है, दूसरे में मंसूब है, फिर मजरूर है। फिर से एक बार देखिए, उसी को और सफाई से लिखा हूं मैंने, मोहम्मदुन। यहाँ पे मोहम्मदुन फाइल है, इस पर कोई अमल नहीं हुआ, इसलिए मरफू शक्ल है। और रसूलुल्लाह ही ये खबर है, मुब्तदा मोहम्मदुन है, रसूलुल्लाह ही ये मुरक्कब इजाफी है, और रसूलु खबर है अल्लाह के रसूल। आगे बढ़िए, अशहदु ये काम है, फियल है, इसका फाइल उसमें बारिद है, मैं शहादत देता हूँ कि। आगे क्या शहादत दे रहा? किसकी शहादत दे रहा? अमल हो रहा है, ये का अमल हो रहा है इस्म पर, इसलिए इस्म की हालत का मतलब उसकी हैसियत तब्दील हो रही है, नसब हालत में चले गया इस्म। तीसरे में देखिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। तो यहाँ पे अला हर्जर है, इसलिए मोहम्मद इस्म जो है मोहम्मदिन हो गया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जरा देखिए, इंपॉर्टेंट रूल राइटिंग के होते हैं। जब भी हम नसब बनाते हैं, ज़ैदन के साथ एक अलीफ, ये राइटिंग रूल है। ज़ैदुन से ज़ैदन बनाने के लिए एक अलीफ उसको अटैच करना जरूरी है। ठीक है, बिल्तो बिल्तन कैसा बनेगा देखिए। अच्छा, यहाँ पे देखिए, इस्म जो है, जुमला इस्मिया बनाई, अल्लाह है बहुत माफ करने वाला, अल्लाहु गफूरुन। तो ये जुमला इस्मिया है। अब इसके सामने हम इन्ना दाखिल करेंगे जो बड़ा भारी आमिल है, इन्हें अपने मुब्तदा को नसब दे देता है भाई। इन्ना दाखिल हो जाएगा, अल्लाहु गफूरुन, तो इन्नल्लाहा गफूरुन, तो खबर पर कोई असर नहीं होगा, अलबत्ता मुब्तदा बन जाएगा इस्मो इन्ना और अल्लाह। इसके बाद इसी तरह से एक आमिल हर्फ है काना। काना जो है जुमला इस्मिया पे आता है, और इन्हें खबर को नहीं अमल करता, सॉरी मुब्तदा पर अमल नहीं करता, खबर पे करता। कानल्लाहु गफूरन,
अब जुमला फेल है, चारों चीजें आप रट्टा मार के याद रखो। खलक़ल्लाहु अर्बा, यहाँ पे देखिए खलक़ का काम है और काम करने वाले, इसमें जलाला अल्लाहु है, पेश दिख रहा है तो रफा है, और अर्द पे काम हो रहा है जमीन पर, इसलिए अर्दा हो गया। मेरे ख्याल से अच्छी तरह से आपकी रिवीजन हो रही है। चार चीजों में चार मुख्तलिफ किस्म के चीजें नजर आ रही है। पहला जुमला देखिए, जुमला इस्मिया है, इसमें अल्लाहु रफालत में है, गफूरुन भी रफालत में, मुब्तदा और खबर हमेशा रफालत में होते हैं। वो पढ़ेंगे अब जुमला इसमें जब आएगा, मुझे यकीन है आप भूल गए मुझसे। हाँ, इसम के मायने पढ़िए भाई, किसी शख्स का नाम, किसी जगह का नाम कोई इसम कहते हैं। अरबी जुबान में इसम कैसे समझे, इसम को समझने के ये मुख्तलिफ तरीके हैं। एक तनवीन है, बोलता है तो मुन्नस है, अलिफ लाम लगा तो भी इसम है, ठीक है, और मुंह से शुरू होता है कोई भी तो भी इस्मुल फाइल होता है, इसलिए मुनाफिकुन, निफाक करने वाला मुनाफिक है। सर फाइल तो भी इसको इसमें होता है। समझने के, पहचानने के, आंखों से देखकर पहचानने के चार तरीके। तनवीन होगी, गोलता होगी, अलिफ लाम दाखिल होगा, शुरू में मीम पेश मुंह दाखिल होगा। जरा देखिएगा, लफ्ज के आखिर में तनवीन, रजूलुन दिखा हरे में, लफ्ज से पहले अल कलम इसमें है, लैलतुन गोलता नजर है इसमें है, आयातुन ये तमाम चीजें इसमें मुन्नस है। चलिए, अब यहाँ तक का एक सेक्शन हो गया हमारा। अब अहम पोजीशन पे आ रहे हैं हम। देखिए बच्चों, मेरी बात याद रखिए, जिसको इस्म नहीं समझा उसको कुरान का ग्रामर बिल्कुल नहीं आता। प्रोनाउन का मतलब ऐसा इस्म, ऐसा लफ्ज जो इस्म की जगह पे इस्तेमाल हो। जैसा अंग्रेजी में हामिद की जगह ही आएगा, जैनब की जगह शी आएगा, हामिद का बताना तो हिज आएगा, जैनब का बताना तो हर आएगा, मेरा बोले तो माय आएगा, मुझे बोले तो मी आएगा, मैं बोले तो आई आएगा। इसको प्रोनाउंस कहते हैं, और प्रोनाउन दो किस्म के। आप बहुत मर्तबा कंफ्यूज होते रहते हैं अटैच प्रोनाउन और डिटैच प्रोनाउंस। अटैच प्रोनाउंस और डिटैच प्रोनाउंस कल डिटेल लेंगे आपको। आज सिर्फ इतना बताते हैं कि ज़मीर किसे कहते हैं। ज़मीर का मतलब प्रोनाउन, इसको याद कीजिए, नाम के बदले इस्तेमाल होने वाले कलीमे को इसमें ज़मीर कहते हैं। ये कभी इसम के साथ लटक के आता है और कभी अकेला भी आ जाता है, यानी इसम के खांधे पे बैठ के आएगा या अकेला पैदल भी आएगा। जब इसम के साथ चिटक के आएगा उसे मुत्तसिल कहेंगे, और जब पैदल खुद ही चल के आएगा उसको मुनफसिल कहेंगे। मुनफसिल यानी सेपरेट। ज़मीर मुनफसिल वो मुब्तदा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और अटैच प्रोनाउन यानी मुत्तसिल ज़मीर खबर के तौर पे भी इस्तेमाल होती है, मुख्तलिफ शक्लों में इस्तेमाल होती है। तो ये आखिरी स्लाइड है मेरी, अटैच प्रोनाउंस और डिटैच प्रोनाउंस, ऐसे दो अलग अलग होते हैं, अटैच प्रोनाउंस और डिटैच। अटैच प्रोनाउंस किसी को पकड़ कर आते हैं, या तो इस्म के साथ पकड़ कर आते हैं कंधे पे, या तो फेल के कंधे पे बैठ कर आते हैं, या हर जर के कंधे पे आते हैं, या मुख्तलिफ किस्म के हर्फ पे पकड़ के आते हैं। अटैच प्रोनाउंस को कहते हैं जर्री या नस्बी हालत, और डिटैच प्रोनाउंस को कहते हैं रफा हालत। कल इसके बारे में बहुत बारीकी से इंशाल्लाह पढ़ाई होगी, तो आपका पूरा चीज एकदम रिफ्रेश हो जाएगा। आपको कोई चीज रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको भरपूर नोट्स दिए गए हैं, खाली आप अपने नोट्स निकालिए। आपने प्रिंट आउट नहीं निकाले होंगे इसलिए आपको कुछ भी याद नहीं आता। अच्छा, यहां तक का आपको कोई चीज
फास्ट हो रही, स्लो हो रही, कोई मुश्किल है तो मुझे बताइए, आपके मुताबिक उसको अरेंज करें, वरना मैं हाफिज साहब को हैंड ओवर कर दूं। शुक्रिया। सर बहुत अच्छा जा रहा है सुकून से। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी रिकॉर्डिंग में भेजूंगा सर, आज भेजूंगा 2 दिन की रिकॉर्डिंग। हाँ सर भेज दीजिएगा। इसको संभाल के रखिए, ये आपको हमेशा मदद करें। अच्छा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह बरकातहू। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये कलिमा शहादत है, हमको मालूम है। इसका जो तजवीद के मुताबिक हम एक मर्तबा इसको देखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। बचपन से हम लोग पढ़ते हुए आते हैं, बाज लोगों की बाज गलतियां होती, तो इसको हम एक मर्तबा तजवीद के मुताबिक देखेंगे और आज इसका ग्रामर भी थोड़ा सा देखेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहला है शुरुआत, एक लफ्ज है अशहदु। अशहदु, हमजा जबर आ और शीन साकिन है, जज़म आ गया तो शीन साकिन हो गया, हा के ऊपर जबर, फिर दाल पे पेश मुतहर्रिक हो गया। जबर जेर पेश की हरकत को हमेशा जल्दी पढ़ना है, और जबर की आवाज ये याद रखिए, जबर की आवाज ऊपर की तरफ उठती, जेर की आवाज नीचे की तरफ जाती और पेश की आवाज आगे की तरफ जाती। जैसे हमजा जबर आ, हमजा जेर ई, हमजा पेश उ, तो जबर की आवाज ऊपर की तरफ जाएगी, जेर की आवाज नीचे जाएगी और पेश की आवाज आगे की तरफ। तो ये हमजा के ऊपर जबर है, ऊपर आवाज जाएगी, फिर हा के ऊपर जबर और दाल के ऊपर पेश। तो ये एक लफ्ज हो जाएगा अशहदु। अशहदु, अशहदु। शीन का तलफ्फुज, इसका प्रोनाउंसिएशन सही होना, हा का भी और दाल का भी। ये कलिमा है और ये गवाही है हमारी। इसके मायने हम सबको मालूम है, मैं गवाही देता हूं। अगर हम खुदा न खास्ता अगर कुछ गलत सलत पढ़ लेंगे, हमारे दिलों के हाल तो अल्लाह जानता बेहतर, लेकिन गलत नहीं पढ़ना चाहिए। अगर कुछ गलत पढ़ेंगे तो मायने कुछ और हो जाएंगे, तो इसलिए इसका तलफ्फुज हमें सही करना जरूरी है। तो पहला लफ्ज है अशहदु। 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 उसके बाद है अन, हमजा नून जबर अन,
حمزہ کے اوپر زبر ہے، متحرک ہے اور نون ساکن ہے. تو تجوید کے اصول ہم نے دیکھے. دو حرف ایسے ہیں کہ جن کے بعد ہم کو حرف دیکھنا پڑتا غنہ کے لیے. ایک نون ساکن ہے اور دوسرا میم ساکن ہے. یہ دو حرف ہے غنہ کے، ایک نون ہے اور دوسرا میم ہے. اگر نون کے اوپر تشدید آ گیا تو نون مشدد، میم پہ تشدید آ گیا تو میم مشدد. ان کے بعد آنے والے حرف کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تشدید آ گیا تو خود ان کے اندر غنہ ہو جائے گا. اور اگر یہ جب ساکن بن جاتے، نون ساکن اور میم ساکن، تو ان کے بعد آنے والے حرف کو ہمیں دیکھنا ہے کہ کون سا حرف ہے. تو یہاں پہ بھی نون ساکن ہے. نون ساکن کے بعد جو حرف آیا وہ لام ہے. اب لام غنہ کرنے کے جو چار اصول ہے، جو چار قاعدے ہیں، اخفا، اظہار، ادغام اور اقلاب. تو یہ لام حرف کون سے حروفوں میں سے ہے، کون سے قاعدے کے حروفوں میں سے آ رہا؟ ادغام سے ہے یا ادغام کے 6 حرف ہے، یا، را، میم، لام، واو اور نون. یا، را، میم، لام، واو اور نون. اب یہ 6 حروفوں میں 2 حرف ایسے ہیں جو غنہ کے دشمن ہیں، جس پہ غنہ بالکل بھی نہیں ہوتا. وہ را ہے اور لام ہے. اب دیکھو نون ساکن کے بعد کون سا حرف آیا؟ لام آیا. تو یہ یہاں پہ قاعدہ ہوگا ادغام کا اور غنہ کے بغیر، کیونکہ لام آ گیا غنہ بالکل بھی نہیں ہوگا. تو یہ نون کی آواز ادغام کریں گے تو مرج ہو جائیں گی، مدغم ہو جائیں گی لام کے اندر. اور لام الف زبر لا، الف مدہ کا قاعدہ. تو یہ نون بالکل بھی مدغم ہو جائے گا قائم لام کے اندر. تو اب دونوں ملا کے ہو جائیں گا اشہد اللہ. ظاہر میں نظر آ رہا نون، لیکن پڑھنا بالکل بھی نہیں ہے. پڑھنے میں اللہ اور لکھنے میں اللہ. یہ یاد رکھیے آپ. کبھی بھی اگر ہمارے زبانی اگر ہم کو کسی پیپر پر، کسی کاغذ پر اگر کلمہ شہادت لکھنا ہے تو یہ یاد رکھنا ضروری ہے، ان اور لا. ان لا. لیکن تجوید کے اصول کے مطابق ہو جائیں گا اللہ. اشہد اللہ. اس کے بعد ہے الہ. حمزہ کے نیچے زیر اور لام کھڑا زبر اور ہا زبر الہ. الہ. یہ جو لام الف زبر لا ہے ان کے بعد والا، یہاں پہ قاعدہ ہو رہا الف مدہ کا. کون سا قاعدہ؟ الف مدہ کا قاعدہ. تجوید کے اصول میں ہم نے دیکھے کہ الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ، تینوں کے بعد اگر حمزہ، تشدید اور سکون اگر آ جائے تو ان کو زیادہ کھینچ کے پڑھنا پڑتا. وہاں پہ ایک مد دیا جاتا، اور وہ مد اگر کسی لفظ کے، کسی ورڈ کے بیچ میں آ رہا تو مد متصل کہیں گے، اور اگر شروع میں اور لاسٹ میں آیا تو مد منفصل. تو یہاں پہ بھی مد منفصل ہوگا. اب پڑھنے کا طریقہ ہو جائے گا اشہد اللہ الہ. اشہد اللہ الہ. اس کے بعد ہے اللہ. حمزہ کے نیچے زیر اور لام الف زبر لا. اللہ. اشہد اللہ الہ الا. آخر میں ہے اللہ. 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 اب یہ اللہ آیا، لام الف زبر
لا، اور اس کے بعد والا جو اسم ہے لفظ جلالہ وہ اس کی شروعات ہو رہی الف لام سے، اور الف لام سے شروعات ہو رہی تو پہلا حرف جو ہے وہ بھی لام ہے، تو یہ لام حروف شمسیہ میں سے ہے۔ اب یہ جو لام ہے یہ لام ڈائریکٹ یہ لام سے ملے گی، بیچ کا پہلا الف، دوسرا الف، یہ حمزۃ الوصل اور یہ لام تینوں بھی ڈراپ ہو جائیں گے، لام پڑھا جائے گا خالی زبر کے ساتھ، الا اللہ، الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، أشهد أن لا إله إلا الله اشہد ان لا الہ الا اللہ، أشهد أن لا إله إلا الله. ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے پھر واو زبر وا، اور پھر سے آیا اشہدو، یہاں پہ جیسا پڑھے تھے ویسا ہی یہاں پہ پڑھنا ہے اشہدو۔ اس کے بعد ہے انا، اوپر تھا ان اور نیچے ہے انا، اوپر نون ساکن تھا تو اس کے بعد آنے والا حرف ہم نے دیکھے تھے کون سا ہے، اب یہاں جو ہے وہ نون اور مشدد ہے، اب اس کے بعد والا حرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پہ خود غنہ کریں گے، وَأَشْهَدُ أَنَّ، أشهد أن وَأَشْهَدُ أَنَّ، وَأَشْهَدُ أَنَّ، وأشهد أن یہ کیا ہے؟ انا، نون مشدد ہے، اس کے بعد الف آیا، تو یعنی کہ الف سے پہلے والے حرف پہ زبر آیا تو یہاں پہ الف مدہ کا قاعدہ ہوتا اور اس کو کھینچ کے پڑھا جاتا، اور اگر الف نکال دیے صرف زبر اگر رہا تو تب کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے، تو پڑھیں گے ہم اشہد ان، أشهد أن ہاں اشہد ان نہیں پڑھنا ہے، اشہد ان، أشهد أن اس کے بعد ہے محمدن، محمدن یہ ایک اسم ہے، اور اگر ہم ہر ایک حرف کو الگ الگ کریں گے، سب سے پہلے ہے میم، میم کے اوپر کیا ہے؟ پیش ہے، جب میم کے اوپر پیش آیا تو میم کی آواز کیسی ہو جائیں گی؟ مو، مو۔ پھر اس کے بعد ہے ہا، ہا کے اوپر زبر آیا تو ہا، کھینچنا بالکل بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ہے میم، اور یہاں پہ ہے میم مشدد، تو غنہ ہو جائے گا، اور پھر پلس اس کے اوپر متحرک مفتوح یعنی کہ زبر آ گیا، اب تینوں ملا کے کیا ہو جائے گا؟ محمد، یہ میم کو نکالو، ہا اور میم پڑھو، ہم، ہم، میم پیش مو، محمد۔ اس کے بعد ہے دال، اب دال پہ ڈال دیں گے دو پیش تھوڑی دیر کے لیے، میم نکال دیے، بیچ میں میم مشدد غنہ کے ساتھ، اور آخر میں دال دو پیش دن، تنوین کے پیچھے ہمیشہ نون ساکن چھپا ہوا رہتا، تو نون کی آواز آئیں گے دن، دال دو پیش دن، اب تینوں حرف ملا کے ہو جائیں گا حمد، حمد، اب میم ملا کے اور پیش ڈال کے محمد، میم کی آواز میم کے اوپر پیش ہے تو ہونٹ گول کر کے محمد۔ یہ نام اتنا مبارک نام ہے، ہمارے اور آپ کے تمام امت مسلمہ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کے نبی
تو یہ نام کو پڑھنے میں برائے مہربانی اس کو غلط مت پڑھیے، اس کا غلط تلفظ مت کیجیے، اس کو کوشش کیجیے بار بار پڑھنے کی۔ اور بہت ساری غلطیاں ہمارے جو محمد بولتے نہیں، محمد محمد میم کے اوپر پیش ہے تو پیش کی آواز برابر آنا، ہوٹ گول کر کے میم پیش مو۔ ہاں، محمد محمد غلطیاں آپ بھی سنتے، آپ دیکھیے، غور کریے، ہمارے آس پاس بھی جتنے بھی لوگ پڑھنے والے ہیں ان کو بھی سنیے اور آپ کو خود سمجھ میں آئے گا کہ کہاں غلطی ہو رہی۔ خاص طور سے اذان سنیے، اذان جب سنیں گے تو اس کے اندر بھی سمجھ میں آئے گا کہ ہماری غلطی کہاں ہوتی ہے۔ ہاں، اذان بھی مطلب جو صحیح دیتے ہیں ان کی سننا، نہیں تو ہمارے پاس شروع سے چل رہا اشہد ان محمد رسول اللہ ایسا اذان دے دیتے، ویسا نہیں، جس کی صحیح اذان ہے اس کا سننا ہے۔ تو ہو جائے گا یہ محمد، جلدی پڑھو یا آرام سے پڑھو لیکن صحیح طریقے سے پڑھو، محمد۔ تو بہرحال یہاں پہ ہے دو زبر کے ساتھ، تو یہ ہو جائے گا محمدن، واشہد ان محمدن، أشهد أن محمدا ابھی یہ محمدن یعنی کہ دو زبر ہے، دو زبر یعنی کہ تنوین، دو زیر دو زبر اور دو پیش۔ تنوین جب بھی آتا تو اس کے پیچھے نون ساکن چھپا ہوا رہتا، تو نون ساکن کے بعد آنے والا حرف ہم کو دیکھنا ہے کون سا ہے۔ نون ساکن کے بعد آیا عین، عین آیا، یہ الف تو دو زبر کے ساتھ والا ہے، عین آیا، تو عین حروف حلقی کے 6 حروفوں میں سے ہے، اس لیے یہاں پہ قاعدہ ہو جائے گا اظہار کا، یعنی نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، محمدن۔ محمدا پھر اس کے بعد ہے عبدہ، عین کے اوپر زبر اور با ساکن، عبده ان پہ زبر با ساکن۔ اب با ساکن ہے تو وہ 5 حروفوں میں سے ہے کیا؟ قاف، طا، با، جیم اور دال، تو با آ گیا ہمارے پاس، یہ 5 حروفوں میں سے ہے۔ اب یہ 5 حروف جب بھی ساکن ہوتے تو آواز ٹکرائیں گی، قلقلہ کا قاعدہ ہو جائے گا اور اس کو ایکو کر کے پڑھیں گے، جیسے اب عین با زبر اب، اب اب دال پیش عبدو، عبده عبدو، واشہد ان محمدا عبدو، واشهد ان محمدا عبده پھر ہاں پیش ہو، عبدہ، عبده عبدہ، عبده عبدہ۔ عبده یہ جو ضمائر ہے، ضمائر یعنی پروناؤنس، پروناؤنس کتنے ہیں؟ 14 ہے، جس میں سے پہلا پروناؤن ہے، پہلا ضمیر ہے ہوا، کیا ہے؟ ہوا، اور یہ ہے منفصل ضمیر۔ جب متصل ضمیر بنیں گی تو ہوا کا کیا بنتا؟ ہو، اسم کے ساتھ بھی اور فعل کے ساتھ بھی۔ اب یہ جو ضمیر ہے ہو، اس کا ایک قاعدہ ہے تجوید کے اندر، اگر اس کے بعد والا حرف اس کے پڑھنے میں اگرچہ مشکل ہوتی، ہاں پیش ہو ہے، پیش کی حرکت کو زیادہ نہیں کھینچتے، لیکن اگر آگے کی لائن کو، آگے کے لفظ کو ملا کے پڑھنے کے لیے جب مشکل ہوتی تو یہاں پہ کیا کیا جاتا؟ ایک پیش کو الٹا پیش کر دیا جاتا، اور الٹا پیش کس کے برابر ہے؟ واو مدہ واو مدہ کے، تو اس لیے اس کو بھی کھینچ کے پڑھیں گے، عبدہ، عبده عبدہ۔ عبده اس کے بعد ہے وَرَسُولُ، واو کے اوپر زبر، را کے اوپر زبر، سین واو پیش سو،
واو مدہ کا قاعدہ، پھر لام پہ پیش اور پھر ہا پہ پیش، ورسولہ، ورسولہ اور جب یہاں پہ رکیں گے تو یہ پیش ہٹا کے رسولہ ساکن کر دیں گے، ورسولہ، ورسولہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله اور ایک جگہ محمد رسول اللہ، اب ہمارے پاس ہے محمد اسم، آخر میں دو پیش تنوین ہے، تو تنوین یعنی کہ نون ساکن، نون ساکن کے بعد والا حرف کون سا ہے؟ را ہے، تو را حروف یرملون میں سے ہے، ادغام کا قاعدہ ہے، اور لام اور را جب بھی آتے تو غنہ بالکل بھی نہیں ہوتا، اسی لیے یہاں کی بھی تنوین ملیں گی کس سے؟ را سے، اور غنہ بالکل بھی نہیں ہوگا۔ پھر را کے اوپر زبر ہے، سین واو پیش، سو لام پیش، لو، رسول، پھر اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد رسول الله محمد الرسول اللہ، محمد رسول اور یہاں پہ جب رکیں گے تو محمد الرسول اللہ، محمد رسول الله ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا ہمارا کلمہ شہادت جس کو ہم نے تجوید کے مطابق دیکھے۔ ایک بار پھر ہم پڑھیں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، أشهد أن لا واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، أشهد أن محمدا عبده ورسوله رسوله یہاں پہ یہ آخری میں جو ہو ہے نا، یہ والا رکنا ہے، اس وجہ سے ہا پہ سکون آ جائے گا، ورسولہ، ورسوله واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله پھر سے ایک بار، اشہد ان لا الہ الا اللہ، أشهد أن لا إله إلا الله واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ملا کے پڑھیں گے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تو یہ الحمدللہ تجوید کے مطابق دیکھیں، اس میں کسی کو کچھ سوال ہے، کچھ نہیں سمجھ میں آیا تو پوچھئے۔ اچھا بتائیں۔ الحمدللہ سمجھ میں آیا؟ الحمدللہ جی، اب اس کو دیکھیں گے ہم، اس کا گرامر تھوڑا سا مختصر۔ گرامر دیکھنے کے لیے کبھی بھی ہم کو ہر لفظ کو الگ الگ کر کے دیکھنا پڑتا، اور جیسا کہ ہم نے ابھی تک کا پورا کورس کیے، جس کے اندر ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھے، اور 2 دن سے الحمدللہ ریویژن چل رہا ہمارا پرانا، پہلے ہم نے جتنا بھی پڑھے 2 کلاس میں الحمدللہ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھ رہے۔ تو گرامر کی جو بنیاد ہے، عربی زبان کی جو بنیاد ہے، وہ جیسا کل سر نے بتایا کہ زبان سے نکلنے والی آواز لفظ کہلاتی۔ لفظ 2 قسم کا ہے، با معنی اور بے معنی۔ اب بے معنی کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ہٹا دو، با معنی لفظ کو بولتے کلمہ۔ کیا بولتے ہیں؟ کلمہ۔ کلمے کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں؟ 3 کون سی؟ اسم فعل حرف۔ اسم، فعل، حرف۔ اسم کے بارے میں تفصیل کل پڑھے۔ فعل
تو ابھی تک پڑھتے آ رہے ہیں. اور حرف آپ کو معلوم ہے پارٹیکلز کون سے حرف جر ہے, حرف توکید ہے, حرف عطف ہے, حرف استثناء ہے, حرف ندا ہے, حرف جازمہ ہے, حرف ناصبہ ہے, جو ہر ایک کے ساتھ ہم نے لگا کے پڑھے. فعل مضارع کے ساتھ حرف جازمہ حرف ناصبہ لگائے, لم اور لن, ان لم لما حتی, یہ سب تھے. تو یہ عربی زبان کے پارٹس آف اسپیچ ہے. کون سے؟ اسم, فعل اور حرف. کلمے کی 3 قسمیں, اسم, فعل, حرف. جب بھی ہمارے پاس کوئی عربی عبارت آئیں گی, کوئی عربی سینٹنس آئیں گا, یا جب بھی ہم قرآن میں پڑھیں گے, کوئی آیت پڑھیں گے, تو ہم کو تینوں کو الگ الگ کرنا ہے. اسم پہچاننا ہے, فعل پہچاننا ہے, اور حرف پہچاننا ہے. تو ہر لفظ کو الگ الگ کرو اور پہچانو کہ وہ کیا ہے. پہلا لفظ ہے اشہدو. اشہدو کیا ہے؟ فعل فعل ہے. اب فعل ہے تو ہمارے پاس ایک لسٹ ہے. فعل ہے تو کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے, مضارع ہے, امر ہے, ناہیہ ہے. ثلاثی مجرد ہے کہ مزید بھی ہے؟ صحیح ہے کہ غیر صحیح ہے؟ معلوم ہے کہ مجہول ہے؟ پھر بتانا ہے صیغہ کون سا ہے. تو یہ ماضی ہے کہ مضارع ہے؟ مضارع ہے. کیا ہے علامت اس کی مضارع آپ نے پہچانی؟ حمزہ ہے نا, شروع میں شروع میں حمزۃ القطع اور آخری میں لام کلمے پہ پیش. تو یہ حمزہ جو ہے علامت مضارع ہو گیا, اور یہ فا کلمہ, یہ عین کلمہ, یہ لام کلمہ, 3 حرف آ گئے. تو اب یہ بتاؤ کہ یہ فعل ثلاثی مجرد میں سے ہے کہ ثلاثی مزید فی میں سے؟ ثلاثی مجرد. ثلاثی مجرد میں سے ہے. صیغہ کون سا ہے؟ واحد متکلم. واحد متکلم. تو اشہدو, اشہدو آ گیا فعل, ثلاثی مجرد کا فعل ہے, فعل مضارع ہے, اور واحد متکلم کا صیغہ ہے. معنی کیا ہو جائے گا؟ دیتا ہوں میں. میں گواہی دیتا ہوں. اچھا, یہ میں گواہی دیتا ہوں ہے, اپن سب پڑھ رہے جب سے, تو ہم سب گواہی دیں گے نا. تو کیا صیغہ بنے گا؟ نشہدو. اشہدو یعنی کہ میں گواہی دیتا ہوں. تو ابھی کیا کریں گے؟ ہم سب مل کے گواہی دیں گے. نشہدو ان لا الہ الا اللہ. پھر یہاں پہ بھی آئیں گا وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ہم گواہی دیتے ہیں, ہم گواہی دیتے ہیں. تو یہاں پہ تبدیلی کیا آئی؟ حمزہ نکال کے صرف نون لگا دی. تو واحد متکلم سے صیغہ بن گیا جمع متکلم کا. اشہدو سے بن گیا نشہدو. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہے ان. ان کیا ہے؟ اسم ہے, فعل ہے کہ حرف ہے؟ حرف ہے. کون سا حرف ہے؟ حرف ہے حرف ناصبہ ہے. ماشاء اللہ. اپنے بعد آنے والے اسم کو بالکل نہیں. نصب دے دیتا. یہ اصل میں انا ہے, یہ اس کو اخف کر کے ان کر دی. اس کے معنی ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ. ہاں, that. اس کے بعد ہے لام الف زبر لا. اب یہ لا کون سا ہے؟ اسم ہے, فعل ہے کہ حرف ہے؟ حرف ہے. حرف ہے. کون سا حرف ہے؟ نفی کرنے والا. ہاں, سب سے پہلے ہے یہ حرف نفی, یعنی کہ نیگیٹو کرنے والا, انکاریہ. حرف نفی. اب حرف نفی کے اندر پھر اس کی الگ الگ قسمیں ہیں کہ کون سا ہے, سادہ نفی ہے کہ زوردار نفی ہے. تو یہ جو لا ہے یہ لا نفی جنس ہے. ابھی سر نے بتایا انہیں اپنے اپنے بعد آنے والے اسم پہ اٹیک کرتا اور اس کو اخف کر دیتا اور اس کو نسبی حالت میں لے کے چلے جاتا. تو یہاں پہ دیکھو الہ, لا الہ, الہ اخف ہے, یہ اصل میں ہے الہن. الہن سے بنا الہو, اور لا لگا تو وہ بن گیا الہ. مطلب نہیں ہے کوئی معبود, کوئی 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 معبود. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود.
یہاں تک آ گئے. اب اس کے بعد ہے الا. الا کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ حرف ہے. حرف ہے. کون سا حرف ہے؟ استثناء. تاکیدی حرف استثناء. Particle of exception. پارٹیکل آف ایکسیپشن. حرف استثناء. حرف استثناء جیسا ہے الا ہے، غیرہ ہے اور دونی ہے. الا، غیرہ، دونی. من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. غیر المغضوبی، وہ نہیں. نہیں. ہاں وہ تو نہیں ہے. وہ بھی استثناء ہے. اور اس کے بعد ہے الا، حرف استثناء. سوائے، آسان معنی سوائے. الا اللہ، اللہ تو ہم کو معلوم ہے کیا ہے، اسم ہے. الا اللہ، سوائے اللہ کے. کوئی معبود نہیں ہے، ذرہ بھی نہیں ہے، اتنا بھی نہیں، اتنا بھی نہیں. میں گواہی دیتا ہوں. ہاں، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. اللہ ایک ہے. بتاؤ. ہاں. اس کے بعد ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ. وَأَشْهَدُ، پھر وہی آ گیا، میں گواہی دیتا ہوں. فعل مضارع ثلاثی مجرد، صیغہ ہے واحد متکلم کا، اشہدو. اور واو کے معنی، اچھا واو کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف عطف. حرف عطف ہے. وا، فا، ثم، تینوں بھی. تو واو کے معنی ہے اور میں گواہی دیتا ہوں. پھر آیا انا. انا کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ حرف ہے. یہ بھی حرف ہے اور یہ بھی حرف ہے، ناصبہ ہے اور انا کی بہن ہے انا. اس کے معنی ہے کہ. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمدن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عبدہ. عبدہ کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ فعل ہے. اسم عبدن. عبدن کے معنی ہے غلام، بندہ. عبدن. اور یہ ہے ضمیر. لیکن یہاں پہ جو ہے، میں نے یہاں پہ لکھا عبدن اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے عبدو اور اس کے بعد ہے ہو. تو یہ دونوں مل کے کیا بن رہا؟ مضاف مضاف الیہ. مرکب اضافی. یہ پہلا ہو گیا مضاف اور یہ دوسرا ہو گیا مضاف الیہ. یعنی کہ متصل ضمیر اسم کے کندھے پہ بیٹھ کے آ گئی. عبدہ، اس کا بندہ. واو پھر سے آیا، واو، واو حرف عطف ہے. رسولہ، رسولہ. پھر سے یہ ہے رسول لن اور ہو. یہ ایک پیش ہٹ گیا. رسول ہو، یہ ہے مضاف، یہ مضاف الیہ. اس کے رسول. پورا جملہ کیا ہو جائے گا؟ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. شروعات سے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. کوئی سوال؟ سر یہ حرف عطف میں واو کے ساتھ اور کیا ہے بولے؟ واو، فا اور ثم. آپ کو دیکھے دیکھے جی سر سر. حرف استثناء کے بعد اسم کی کوئی حالت تبدیل نہیں ہوتی. حرف جو ہے پارٹیکلز، اس میں دو قسم کے ہیں. ایک ہے عامل اور دوسرا ہے غیر عامل. یعنی ایک
ایک قسم ہے عمل کرنے والوں کی اور دوسری قسم ہے عمل نہیں کرنے والوں کی. یہ جادوگر ہے اور یہ سادے لوگ ہیں. تو عامل جو ہے حرف ان آتا عامل میں، انا آتا عامل میں، واو غیر عامل ہے، الا غیر عامل ہے. ٹھیک ہے، اور کوئی سوال؟ تو یہاں پہ رکیں گے آج. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر بہت معذرت کے ساتھ یہ پچھلے جو نوٹس بھیجے ہوئے ہیں سر، ہمیں کو سمجھ میں نہیں آ رہا کس میں ہے وہ. نہیں کل وہ بھیجے نہیں، اصل میں آج بھیج دیتا ہے انشاءاللہ. نہیں کل کے نہیں بول رہے ہم، جی یہ جی پچھلا جو چل رہا نا اسٹارٹنگ سے، جی. وہ بہت کلاسز مس ہو گئے بول کے بولے تھے نا، تو وہ اگر مل گئے تو پھر میں اس کا پرنٹ آؤٹ لے سکتی ہوں. ہاں گروپ میں ہے وہ، اس کو کیا کرتے ہیں اور فارورڈ کرتے ریسینڈ کر دیں گے اس کو گروپ میں، تو آپ کو ابھی ایک ساتھ مل جاتے پورے جتنے تو بھی بہت بھیجے دنوں ہوئے. کے ہیں نا سر، تو وہ ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہے ہیں سب. اچھا اچھا، ہاں نہیں پھر سے اس کو ریسینڈ کر دیا تو ڈاؤن لوڈ بھی ہو جاتے ہیں آپ کے پاس انشاءاللہ. جی سر، جزاک اللہ خیر. جی. السلام علیکم.